خیر حافظ. اگر یہ شور جاری رہے گا تو ہم اپنی پروسیڈنگ شروع نہیں کر سکیں گے. پلیز دہلیز خالی کر دیجیے, پیچھے جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ جائیں, ہمیں پروسیڈنگس کو شروع کر دیتے ہیں پلیز. Once again, Assalamu alaikum everybody, and welcome to this presentation by Pakistan Tehreek-e-Insaf about the biggest ever theft, fraud of vote that has taken place in the history of this country. We welcome all of you, we welcome members of the local media, we welcome members of the international media, we welcome members of international organizations who come here today, and in particular, it is my pleasure to extend a very warm welcome to those people who have come from various parts of the country whose vote was stolen in the thick of the night. Special welcome to Begum Rehana Saiba, who has travelled all the way from Sialkot. She's the new Iron Lady of PTI. The way she defied the atrocity and ferocity of the state is indescribable in words. We pay a special homage to her. I also extend a very warm welcome to Salman Akram Raja Sahab, who has travelled from Lahore, to Mr. Ali Zafar Sahab, to Abu Zar Niazi Sahab, and he particularly stressed that I must take the word Niazi with his name. So Abu Zar Niazi Sahab and Intizar Panjota Sahab. You're all welcome here. As I start the proceedings, I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 کا سال جہاں اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ اس میں پاکستان میں نیشنل الیکشنز منعقد ہوئے جو کہ بار ڈیلے کیے گئے تھے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں, رول آف لا کی وائلیشن میں. وہاں 2024 اس وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس سال الیکشن کے دوران پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ووٹر فراڈ وہ انفلیکٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے خلاف. ہمارے جو اندازے کے مطابق جو اس وقت تک ہم نے کمپائل کیا ہے اس کے مطابق 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 92 صرف ہمیں دی گئی ہیں, اور 85 سیٹس جو ہیں وہ فراڈولنٹلی ہم سے لی گئی ہیں, جن کے لیے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیپس جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. ان میں سے 46 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ویریفائڈ ڈیٹا موجود ہے کہ وہ لی گئی ہمارے ساتھ, جو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا, اور 29 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے, اور ان دا نیکسٹ 24 آورز وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. یہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کیا ہے اس کے ہم نے 3 بینچ مارکس ہیں, ان کے اوپر ہم نے ان کو یوز کر کے ہم نے یہ ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے. ایک ہے جو کہ ڈسکرپنسی ہے بٹوین فارم 45 اینڈ 47, جو درجات فارم 45 میں ہیں وہ فارم 47 میں نہیں ہے. یہ پہلا بینچ مارک ہے. دوسرا بینچ مارک جو ہے
वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाद दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाविया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामला को आगे बढ़ाएं। समाविया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरद काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला और दफ्तर किसी और के कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं हो रहा और कचरे के ढेर में आरोप आपके ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो हैं ओपन पड़े हैं अपनी वीडियो भी चलवाएं से अभी चलवाएं। ओके। थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाइए। I would request everyone, please स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। काइंडली उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता चल सके कि आपके साथ रिगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। Now I would request शाहबाना गुलजार साहिबा कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज स्टेज के जो राइट साइड पे लोग हैं आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की। राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है। प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा। हम कर लेंगे, दैट्स आवर प्रॉब्लम। Alright, right now I'm addressing the international media and that's why I'm going to be talking in English. Audience. The second half of the presentation is going to be in Urdu and Simavia will present. The first slide, आप जरा देखिएगा जी, हमें we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received
700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Please leave the space. Please leave the space. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left slide ये देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, NQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats and the ECB stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3 and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000 and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button फंस गया? जी, I know. Please, आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document, the graph please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Toba Tek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139.
Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Simabia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Shanana. Thank you, जी. पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो है आपको नजर आएंगी. इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया. स्लाइड नंबर 2 प्लीज. रेहाना आपा, दी ग्रेट, माशाल्लाह, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता. रेहाना साहिबा रात तक विन कर रही थी माशाल्लाह. मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली. कैन आई हैव ये ऑन? ओके, आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं रेगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, श्वेत शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो श्वेत शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रेगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद. 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो वो सबकत ले गए उनसे. थैंक यू शहरियार भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन. आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहां से विन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई. तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए. और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे उनके जो 0 थे
वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेर भाई एक्सक्यूज मी, आई कांट सी दिस स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रिगिंग है। इन तमाम चीजों से सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाजे जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA 11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK 72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA 40 के मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पर जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2, जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए RO ऑफिस के सामने। इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तिराल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू।
Okay, so this is Rawalpindi, and 57 and 56 में ये प्रोटेस्ट किया था. कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई. सवाल आई नो दैट पोस्ट के बाद है, मैं वही बता रही हूँ डिफरेंट. इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट हुए वो आप देख सकते हैं. ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है. Now I would request Salman Akram Raja Sahib. Please, यहाँ से सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? माइक किधर है? भाई साहब पहले कहते हैं. हेलो, सलमान अकरम राजा साहब को रिक्वेस्ट करें कि इधर माइक पर आए, यहाँ पर बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है. कहा है ना यार, आप बताएं उनको. सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं. मान ली भाई, मान ली, आपने मनवाई है. सिमाबिया, एक और कॉर्डलेस दे दीजिए, एक और कॉर्डलेस जी इधर ही होगी. एक कॉर्डलेस और दे, कॉर्डलेस पकड़िएगा उधर से. हम अब करते हैं 51 मरी. सर आ जाए, सर आ जाए. थोड़ा सा डिसिप्लिन. हेलो, ये कॉर्डलेस है. जी बहुत शुक्रिया खातिन हजरात का यहाँ आमद का. ये कॉर्डलेस लगा दी. यार बैठ जाए, बैठ जाए. बाद में कल करूंगा मैं. बैठ जाए. जी बहुत शुक्रिया. मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं. So I will speak in both Urdu and English. सर आ जाए. So that थोड़ा everybody present here सर कुर्सी है. आजे can आप साथ आप follow what happens. डॉक्टर साहब किधर है? So डॉक्टर the किधर है? first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, खामोशी. one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan.
fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that we could not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore.
But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work, and it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done, by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी रिक्वेस्ट है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद के लिए जंग लड़ी है। अपनी बहन को साथ पेश करता हूँ। Alima Appa, thank you so much, and Isma Appa, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब हैं, वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। मैं गुजारिश है काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज
maintain silence ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा नीचे से बोल रहे हैं काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर योर ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब प्लीज। Now, what were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA 58? NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. मैं नहीं था, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The Forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे कम उसको दिया. People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. शोर ना करें प्लीज. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से, इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct,
so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirabdul bhai. Thank you so much, Ayaz sir, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्श देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी। खौफ के फूट मैंने तोड़ लिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी इलेक्शन का मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे, ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 350 ये माँ जी के 350 ये रेहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को कोई इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के पास आ रही थी, बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर अंदर गिरा। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त
ख्वाजा असद साहब के वो अहसन इकबाल डीपीओ और आरो इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर दी थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियासतों को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिन सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म में मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा अक्सर भी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है, मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिर एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना आज़ाद राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर ले तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम सुमा जी, अब हम now I would like to request Forum Chair Zaman और रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है। फोरम शेर जमान और रविस्तान जी। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं,
باہر سے ہوں یا پاکستان سے ہوں، میں آپ سب سے گلہ کروں گا. وہ میرا گلہ یہ ہے کہ جو کچھ کراچی کے اندر ہوا، جو ظلم کراچی کے اندر ہوا، جو ڈے لائٹ رابری کراچی کی ہوئی، اس کو تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی بھول ہی گیا کہ پاکستان کے اندر ایک شہر کراچی بھی ہے. جس طریقے سے NQN کو شہر کراچی کے اندر یہ تحفے کی شکل میں سیٹیں بانٹی گئیں، میں آپ سے لفظ استعمال کروں گا، بانٹی گئیں، اس کے اوپر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی آواز اٹھائی نہیں گئی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے جب 2018 میں بھی اپنی حکومت بنائی تھی تو اس کے اندر سب سے بڑا رول جو پلے کیا تھا وہ شہر کراچی نے کیا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2024 میں الیکشن ہوئے تو جتنا ووٹ تحریک انصاف کو شہر کراچی میں اس دفعہ ملا وہ شاید 2018 میں بھی نہیں ملا ہوگا. جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، ان فارم 45 میں ہم نے یہ دیکھا کہ 12.5 لاکھ سے لے کے 13 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کو دیے. میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنی 19 سیٹیں جیتی ہیں. 19 سیٹیں، 19 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہم نے کراچی میں سے جیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ ریزلٹ کراچی کے اناؤنس ہو ہی نہیں رہے. اور مراد علی شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، سعید علی کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، ناصر شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ کراچی کی بات ہو جائے. حیدرآباد کے اندر ہم نے اتنی بڑی لیڈ لی ہے کہ کوئی حساب نہیں. 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں پہ وہ ساری سیٹیں کھا کر حیدرآباد کی ایک سیٹ دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بدنام زمانہ جو سیاسی جماعت NQN جو ذمہ دار تباہی کی پاکستان کی معیشت کی پچھلے 30 سال تک، اس سیاسی جماعت کو واپس نافذ کر دیا گیا کراچی کے اوپر. ان کو جا کے سیٹیں تحفے میں دے دی گئی ہیں کہ لو مزے کرو. ان کو 2.25 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا ہے جو ریزلٹ ہمارے پاس فارم 45 کے اندر یہاں پہ موجود ہے. جماعت اسلامی کراچی کے اندر ہمارے بعد نمبر 2 پہ آئی ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی 3رے نمبر پہ تھی، TLP 4تھے نمبر پہ، اور NQN جس کو بانٹا گیا ہے سیٹیں وہ 5ویں نمبر پہ تھی، 5ویں نمبر پہ. یہ ہم فارم 45 کے اندر اس کو ثابت کریں گے. سو میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا اور اس کے بعد میں ختم کروں گا کہ NA 236 میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 1,03,640 ووٹ لیے اور اس کو کتنے ووٹ دے دیے؟ اس کو 1300 ووٹ دے کے فارغ کر دیا. 1300. NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا، جی آئی نو جی. سو NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑا تھا 78,000 ووٹس میں نے سیکیور کیے. 78,000. میرا ریزلٹ کیونکہ RO نہیں اناؤنس کر رہا تھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، میرا RO جو تھا اسے ریزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. آدھی رات کو اس کو ہٹا دیا، آدھی رات کو تبدیل کر کے کسی خاتون کو بلایا، اسے ڈرایا دھمکایا اور ریزلٹ چینج کر دیا. تو یہ حال ہے کراچی شہر کی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہائی لائٹ کراچی کو پلیز ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم کسی بھی اسپیکر کو نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہاں پہ اسپیچز نہ کریں، پریسائزلی بتائیں فارم 45 پہ آپ کے کتنے ووٹ ہیں، 47 میں آپ کو کتنے ووٹ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں ہماری انٹرنیشنل میڈیا کا اور لوکل میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، سندھ سے، کراچی سے ہم نے پروونشل اسمبلی کی 34 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن MQM اور پیپلز پارٹی نے ہماری میننگ کو جو ہے بدل دیا. میرے 4,167 ووٹ تھے، پیپلز پارٹی کے 3,278 ووٹ تھے. ان کے فارم 47 میں 7,000 ووٹ کر دیے اور میرے 2,164 کر دیے. یہ آروپ اور ان کے ساتھ جو مافیا تھا انہوں نے یہ ظلم، یہ جبر پورے سندھ میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیا ہے.
तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दें। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कर रहे हैं। ये अरबिस्तान से हमारे साबिक एमपी भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप शैफुर साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने खाता हूँ कि ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है। और मेरे मध्य मुकाबिल के जो कैंडिडेट है मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है वो हक और सच पर मबनी है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूं कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके के वर्करों पर, कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने फॉर्म 45 हासिल किया। और कराची NA 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बरसारा मेरा अच्छा बसमानी मैं अपना हल्का बोल देता हूँ। मेरे साथ ये ले उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। और फिर हमारे सांबा से श्वेत शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करेंगे। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 49 अटक 1 और बेटी ईमान सीम NA 50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई वो तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो। मेरी बारी है, आपने साथ वीडियो चलानी है। जगह पे भूले हुए हो, इसके बाद मेरी बारी है, आपने वीडियो चलानी है। आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN बेटे इसके बाद मेरी बारी है, वीडियो चलानी है, वीडियो चलानी है। और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान का है, वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान का है, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सोहेब जो कि नून लीग का था। मलक सोहेब तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने
اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ تیسرے نمبر پہ تھا اور ایمان حافظ صاحب سے بھی 22,417 ووٹ زیادہ لے کر نمبر 1 پہ تھی اور راتوں رات انہوں نے سارے چینج کیے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم کھڑے سر, تھینک یو, اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے. میری باری ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت بسرا. ابھی باقی ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سکرینیں خالی کریں گی تینوں, یہ سکرینوں پہ آگے سے بندے ہٹیں تینوں. یہ اسمبلی کے پیچھے وہ جو رائٹ سائڈ پہ سکرین ہے اس کو خالی کریں. آپ لوگ بھائی, آپ لوگ خالی کریں سکرین. یہ تینوں اسمبلیز خالی کریں وہاں سے. آپ لوگ نیچے اتریں بھائی, سب لوگ نیچے اتریں نیچے سارے. ادھر والی بھی خالی کریں, لیفٹ سائڈ کی بھی. وہ رائٹ سائڈ پہ بندے کھڑے ان کو بھی اٹھائیں. سب لوگ ہٹیں وہاں سے, ہٹیں وہاں سے سارے. شاباش, جلدی ہٹیں. بسم اللہ نظر آ رہی بسم اللہ خالی کریں اسکرین. بسم اللہ. مہربانی کریں اسکرین خالی کریں بھائی. ہٹے آپ لوگ. ہلو, نیچے اترو, نیچے اترو اسکرین سے. بسم اللہ. اسکرین سے نیچے اتریں. ہیلو 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 ہیلو. ختم ہو گیا. ہیلو یار, مائک نہیں چل رہا بھائی. ہیلو, میں اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں. چلے, آپ کو آواز آ رہی ہے. ہیلو نہیں, آپ آپ کو میرا تو پتا ہے نا, 104 ووٹوں کا ڈفرنس. ایک گزارش سن لیں, مہربانی کر لیں. یہ یہاں پہ بہت سارے ورکرز اندر آئے ہوئے ہیں. مہربانی کریں, یہ آپ کی وجہ سے آپس بھی بنا ہے, شور بھی ہو رہا ہے. ابھی اگر کوئی شور کرے گا تو ہم اس کو زبردستی نکالیں گے. آپ خاموش ہو جائیں. یہ مہربانی کریے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت محمود بسرا, کینڈی 163, جنوبی پنجاب, بہاول نگر 4. میں کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فاروق صاحب کی کورٹ میں پیش ہوا تھا اور صحابی بھائی ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کورٹ کے سامنے کہا تھا. اگر جھوٹ بولوں اور میں کوئی بات چھپاؤں تو اللہ کا مجھ پر کہنا اللہ کی مجھے نبی شفاعت حاصل نہ ہو آخرت میں. اور جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو ان کو بھی نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو. گزارش یہ ہے, میرا حرکت کہتے تھے خان صاحب کا ووٹ صرف جی ٹی روڈ پہ ہے, شہر میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے سپریم کورٹ سے تعلق بحال ہوئے, 8 دن میرے پاس تھے. واللہ بخدا مجھے کیمپین نہیں کرنے دی گئی, لیکن لوگوں نے کہا شوکت بسرا ووٹ امانت ہے قیدی نمبر 804 کی, تم نہ گھر سے آنا. 60% ووٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا. سنیں شوکت, یہاں یہ انٹرسٹنگ حلقہ ہے. میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور میڈیا کو کہوں گا کہ اس کو ایز اے سیمپل لے لیں. 3 کینڈیڈیٹس تھے. شوکت بسرا, اللہ تعالیٰ کے کرم فضل کے بعد میں خان صاحب کا ممنون ہوں, خان صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. شوکت بسرا پی ٹی آئی کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے نور الحسن تنویر, اور مسلم لیگ ضیاء آمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء کی طرف سے تھا. آپ کو صرف ووٹ بتا دیتا ہوں. شوکت بسرا 96,710, اور میرے پاس ایک فارم 45 دکھایا ہے. اور یہ ویڈیو دیکھ لیں, میرے حلقے کی ویڈیوز ہیں. 48 گھنٹے ہمارے لوگ وہاں پہ رہے. ڈی پی او بہاول نگر آیا, اس نے وہاں سے زبردستی ریٹرننگ افسر غور سے دیکھ لیں, میں کوئی ویڈیو نہیں چلاؤں گا. 48 گھنٹے 10,000 بندہ باہر بیٹھا رہا. انہوں نے ڈی پی او بہاول نگر سے علیگ پولیس کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ وہاں سے تمام ریکارڈ غائب کیا. اور میرے جو جیت تھی, ٹھیک ہے سے میں جان دوں گا, ویڈیو ضرور دیکھیے گا. یہاں پر میں نے وہ ویڈیو بھی موجود ہے جہاں پر 40 فارم 45 تیار ہو رہے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں, اور سے ذرا ویڈیو دیکھ لیں. شوکت بسرا 96,710. دوسرے نمبر پہ یہ ٹیسٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں, نون لیگ کا نور الحسن تنویر, اس نے لیے 72,784. تیسرے نمبر پہ اعجاز الحق, جس کے ووٹ ہیں 58,822. اب انٹرسٹنگ کام دیکھیں, اس
पसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजत आपका नोटिस दे दिया हमें इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आर्गो की है, वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजत आमद इसके लिए भी टाइम मुकर्रर करें। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूँ, इसके लिए भी टाइम है। इन्होंने कोई अनोखा इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना जैसा लड़ा है, मैंने जैसा टाइम इनके लिए भी रखें। मैंने वहां पर पुराने पाक पे हाथ रखकर बात की है। मैं कहा जैसा आपके दादा से मेरे साहब चाहिए आखिरी बात कह के दुनिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का जहां इमरान खान का सिपाही गुजरा है, मैं हल्के वालों को भी पार्टी वालों को भी दिलाता हूँ, ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है। आखिरी सांस तक भाई प्लीज मेहरबानी करें, सबको टाइम दे। क्या सिस्टम चल रहा है ये वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया। क्या बात है? मुझे बुलाए और इजाजत आपको बुलाए, अगर इजाजत आप फॉर्म 45 दिखा दे। सबको 2-2 मिनट का टाइम दे। सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, 2-2 मिनट सबको टाइम चाहिए। प्लीज देखो का ख्याल रखें। यार आपका हम थोड़ा सा अभी तक किसी के स्पीकर को नहीं बुलाए। सैयद फरीद को इनवाइट करते हैं। We are inviting Sayyid Fareed and for the attention of the international media. Sayyid Fareed is a person whose 3 relatives were gunned down on the day the votes were held. He is communicating with his wife. His arrival on the Amir Makam, who was formerly invited to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered women and he will explain from 45 to how his mandate was stolen. Sayyid Fareed. लोकल ही रहेंगे, गोरे चले गए भाई, वो इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। में आजम था उसको हराया मैंने, मुझे नजदीक कर दिया। इधर आ जाइए, इधर शॉर्ट सी बात करें, मुख्तसर से। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें इधर मौका दिया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इन्हें 11 खिलाफ मैं कोई उम्मीदवार हूँ और मैंने पाकिस्तान के तक 12,600 जगह जीता है। उसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया अगर ये समझे कि ये आप उसको जितवाया, लोगों ने जब इजाद किया उसके ऊपर उसके बाद हमारे पास आपका रिजर्व है। मतलब पता करता हूँ इस्लाम से बयान हमारे पास मौजूद है। हमारा 2 आदमी 2 बच्चे हमारे शहीद हो गए और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 1200 किसी के बैठने में कोई फायदा नहीं। हमारा जो है ना वो उसने 55 बंदे गिरफ्तार किया। माइक किधर है? अली माइक किधर है? Sayyid Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PKWIRE workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Sayyid Fareed साहब। आप आ जाए, आप जाए, बस जो कुछ स्पीच करते हैं। अच्छा, दिस इज अ कॉपी ऑफ द FIR and these are Swab 45 declaring unequivocal winner of this constituency. काइंडली सब 24 मिनट की बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्लीज, हमारे बहुत ज्यादा है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ।
صرف میں تمہارا تھوڑا سا وقت دوں گا. تمام لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ 45 فارم سب کے پاس تھے. ہمارے پاس بھی 45 نمبر کے فارم تھے. 2.5 لاکھ ووٹ ہم نے حیدرآباد سے لیا. حیدرآباد پہلا شہر ہے جہاں پر 4 آدمیوں کو زخمی ایم کے نے کیا, 1 آدمی کو شہید کیا, مگر ہماری کسی بھی اخباری نمائندے نے اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا. ہم الیکشن جیتے ہوئے, میں 60,000 ووٹ سے جیتا ہوا ہوں. ایم 220 سے فیصل مغل صاحب وہ بھی 35,000 ووٹ سے جیتے ہوئے. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی جیتے ہوئے. اصل میں مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ عمران خان کے ساتھ میں 29 سال سے ہوں. عمران خان نے جب اسمبلی کے اندر کہا کہ الیکٹرانک مشین آنی چاہیے جس کا رزلٹ صرف 5 منٹ میں آتا, مگر کسی ادارے نے ان چور و ڈاکوؤں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. وہ جس طرح کے مشین لائی جائے, اور ان اداروں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمیں الیکشن ہرایا, اب وہ کیسے چاہیں گے کہ ہمیں الیکشن جتوا دیں. اور انہوں نے مشینیں اسی لیے نہیں منگوائی کہ عمران خان کو تاریخ کا سبق بنانا چاہتے تھے. اگر پاکستان کے لوگوں نے ریفرینڈم دے دیا کہ پاکستان کا واحد لیڈر عمران خان ہے, صرف عمران خان. شکریہ. Excuse me, Mantar Mustafa, candidate, he will speak. دیکھو, میں اپنی محترم کنٹری پریس اور انٹرنیشنل پریس کے سامنے ایک بہت بڑا گریونس رکھنے آیا ہوں. میں حلقہ 171 رہیار خان 3 سے اللہ کے فضل و کرم سے اور خان کے ووٹ کی بنا پر 60,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت کر آیا ہوں. برسوں سے مجھے ISI یہ دباؤ دے رہی ہے کہ میں خان صاحب کو چھوڑ کر otherwise my name will not be notified by the election commission. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہاں ایجنسیز کیا کیا رہی ہیں. یہ ان کو جتوانا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ووٹ پہ کے وقت ہمارا ووٹ لسٹ میں نہ ہو. تو آپ حضرات اس کا نوٹس لیں, ایجنسیز اس میں پوری طرح کیا کر رہے ہیں یار, یہ کس لیے لگوایا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ جی. اب ہم بلوچستان, کیونکہ بلوچستان ہمارا میس ہو رہا ہے, ہم انوائٹ کریں گے سالار کو. اگر سالار کاکڑ یہاں موجود ہے یا غفار کاکڑ, دونوں میں سے جو بھی موجود ہے پلیز یہاں پر آئیں اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں. کوئی نہیں ہونی سالار کاکڑ یا غفار, پٹر مائک کھولنا پڑے گا یار. پلیز آپ اپنی سیٹ پہ تشریف لیں. ہماری تو سارا دن چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غفار خان کاکڑ کی بھی 41 پٹن سٹی سے فارم 45 کے تحت جس میں 110 پولنگ اسٹیشن ہے, سارے 110 پولنگ کے میرے پاس کمپلیٹ ریزلٹ ہے. اس میں میں تقریباً 1800 لیڈ سے جیت چکا ہوں. لیکن فارم 47 جو جاری کیا گیا اس میں ہمیں اندر آفس کے اندر چھوڑا بھی نہیں گیا. اس میں مجھے 2000 لیڈ سے آ رہا ہے. بلوچستان میں ایک چیز میں بتاتا چلوں, بنیر سے ڈاکٹر رضوان وہ آیا ایک ریسٹ ہاؤس میں, اس نے 10 دن اسٹے کیا. اس میں تقریباً 20 ارب روپے یوز ہوئے, جن کے اسمگلرس کو لایا گیا, کنٹریکٹرس کو لایا گیا. میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارے قومی سیٹ پہ سالار خان کاکڑ ابھی تک اس کا فارم 49 جاری نہیں کیا جا رہا ہے. جو کینڈیڈیٹ محمود خان اچھپتائی کے حق میں مسلم لیگ ان کا بیٹا 3000 ووٹ کو 27,000 کیے گئے, یہ داندلی ہے. ہمارے پاس کمپلیٹ ریزلٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم کبھی نہیں. سردار بابر صاحب بھی آ چکے ہیں ہمارے, انہیں یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان سے خصوصاً ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام ان بیوپاریوں کو ہم ایکسپوز کریں گے. بخاری افراد پہاڑ مجھے ٹائم سے یہی کا ٹائم ہے. علی این 123 شباز شریف کے مقابلے کا یہ میرا رزلٹ ہے.
ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम सत्ती NA 51 मरी कोटली कोहटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब में मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो 20,000 जीत रहा हूँ उसमें मेरे वोट 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 हैं। मेरे भाइयों, इसमें जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहां ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए और इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां पर एक आरो है ओवैस तारण, ही इज द वन जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है और हमें उस आपस तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। कंसोलिडेशन में हमें नहीं, बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जो सरासर कानून के खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ रिगिंग इन्होंने की उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। स्वैप ओवर किए, मेरे वोट जहां ज्यादा थे तो उस कैंडिडेट के सामने रखे और उसके मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से पांच जगहों पर उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज किए कि जो पोलिंग का रेशो है वो 90% तक चला गया, जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आरोप वापस जो है वो फेक काम कर रहा है, आरोप की खिलाफवर्जी कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक आप सब लोग मुझे गुजारिश करूंगा, अली भाई, पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत ज्यादा निर्धारित करता रहा है और उसके लोगों को बुला के मैं दुनिया सुनने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ और मैं ये मरवत नहीं मेरी बात सुनने वाली ये बस रिजल्ट कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर, GNN पर मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर करेंगे, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 4 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। माइक भी दे दिया आगे ना, आप माइक पकड़ लो, मैं कहता हूँ इस तरह नहीं होने देंगे। कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है, मुझे जस्टिस चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तबाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलाए। शुक्रिया। यहाँ पर खबर थी जिनके साथ बहुत बड़ा हमला किया गया है। रिक्वेस्ट करती कि बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स विंग कमल शासक जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खबर की भी। थैंक यू। हमें सब बैठे चलेगी। 166
ये उधर जाके बात कर रही है। आप यहाँ कर यार, हमने इधर ही कर। हम जीत चुके हुए थे 78 राशिद साहब उसके बाद पूरा क्या किया जा रहा है यार? रोक के सुबह 11 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर बिठा माइक दे दे राशिद, हमें माइक दे दो। राशिद पूरी सहूलतकारी की, क्योंकि माइक ले आओ उसे। मामला तहसील या साउथ पंजाब की वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, खवातीन पोलिंग एजेंट्स पे तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया है वो लौटा है समी गिलानी। पूरे अहमदपुर शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लौटा लौटा कहते, वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके हारा। अहमदपुर शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन हार चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक, और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली ना इंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हो, ईमान ताहिर साहिबा हो, जितनी खवातीन जीत रही थी, एक स्टेटस फ्रेम ऑफ माइंड है तमाम खवातीन को बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की जो साजिश की है उसके खिलाफ पहले हम ये तो हमारे जो एनए बैठे हुए इधर किस्म का माइंड सेट है कि उनके साथ ये जो इंसाफी की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोज मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस हल्के जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने बताया, इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान मौजूद, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। इतनी खुली धांधली में हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद या माइक इधर दे दो यार। NA148 इधर NA148 मुल्तान NA48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब। ये किनका बुखारी साहब का? जलसा है। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है तो कुरान का फैसला कर लेते हैं, अगर मैं कुरान उठाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है, अगर वो उठाता है तो मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आरओ ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे फॉर्म 45 को खराब करके अनाउंस किया गया और उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए, जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये जब कोई वोटर अपना अली तेरा NA 117 है ना, हमारा लिखा है 45 पोलिंग स्टेशन आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा, नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं है, उसी पोलिंग स्टेशन में 45-50 ये 45 पोलिंग स्टेशन है। भी सारे वकील अच्छा, अब इसको हमने ना बड़ा अच्छे तरह आर्टिकुलेट तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देनी। मैंने इसलिए सबके NA के लिख लिया, नाम लिख लिया है ताकि तैमूर मलिक फिर इसी तरह एक पोलिंग स्टेशन ये आरओ ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 पोल हुए जो करवाया उन्होंने वो 1816, यहाँ पे भी 142 वोट एक्स्ट्रा बना दिए। 70 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली अली अब्बास है, मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका पता है। मैं ज़हीर अब्बास खोखर हूँ, NA 127 से। नहीं, मैं अली भाई की बात कर, बाकी तो अली भी जानता है, बाहर साहब भी हैं, आपको मैं जानता हूँ। आपके सामने केस है, मेरा ख्याल है इसको जो है ना, जब हम तीनों चारों अच्छी प्रेजेंटेशन देखें, 2-2 मिनट सबको बोलने दें, वहाँ से वो फोरम इधर ले लेना। मैं तो एक उधर खो के ले आया यार, माइक फाड़ लिया आपको। नंबर नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। नहीं 2 मिनट नहीं और पीपी पूजा भी कर रहा हूँ। हम तीनों इलेक्शन
नहीं हारे, इन लोगों ने इतनी बातें दी और बदमस्ती की है और उसके बावजूद हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया और हमें आरोप के साथ किसी अंदर नहीं जाने दिया। कितनी बड़ी धांधली थी, ये धांधला हुआ। आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में ऐसे हुआ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो इंतजार इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमानत है। मगर हमने उसको देना है। बंद करूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़, मैंने शबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है, वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आजमों को अफजाल अजीम पार्ट ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फौज भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया और मुझे मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रख दी, मैं खान साहब के साथ था, हूं और रहूंगा और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है। जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज्यादा। तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट ना छोड़िएगा, सेनेट पे रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। तो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म में कोई जगह की मामला खत्म हो जाएगा। मैं PP 95 चिन्योट शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है कि हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NA के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NA 94 से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी कैसे रमन शेख के मुकाबले में रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब यह पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। अली साहब को अली बुखारी जितने कैंडिडेट बराबर का हर एक को बोलने का हक है। इससे प्लीज आप लोग जो हमारे बाकी सूबे हैं, हमें एक्सपोर्टर से अभी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है काइंडली। यार हम क्या लेने आए? पूरा लाहौर में बैठा हुआ है, पूरा लाहौर में जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कर लेते यार, सारे लाहौर में लोग इधर बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे।
अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 उन्होंने बनाए हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि ये उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है उन्होंने सारा झूठ फ्रॉड और शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और बिकॉज एक्नॉलेज बाय दी लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में, 261 पोलिंग स्टेशन थे। ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुके हैं, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालत से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA 48 ये पाकिस्तान की वाइड सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक खालिद जो चौथे नंबर पे उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो 45 का वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से वो जीते थे चले गए क्योंकि हमने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत गए। 46 और 47 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट इसलिए। और आगे भी आज उस पिटीशन जाएगी सीट पे, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तौकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे है NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफर ग्रुप खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के मोहम्मद मदनी साहब, जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमदा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें जदोकोहर किया। और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने, जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने ऑपरेशन किए। हमारे आरओ के दफातर पर आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी, और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे इनको जदोकोहर किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में नवाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में मरियम आ रही है, लाहौर में हमदा शरीफ आ रहा है। ये तमाम सीटें जो हैं लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर ज़दोख़ौफ़ कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें
वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला, मगर बदबख्ती से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया, और जो चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे उनका जो है इन्होंने रिजल्ट चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की यही जो है आवाज है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म से वहाँ से इंसाफ मिलेगा, और पाकिस्तान को जो खान साहब को वोट दिया यही है कि इंशाल्लाह इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और उसके लिए थोड़ा सा प्लीज वो जीता है चेयरमैन तरीके से 31,000 से कम करके बदली 11,000 कर दी, और एक जो वोट थे 6,010 वोट जिसको 20,000 शो किया, और मुझे खैरात में सीट दे रहे हैं आप। इस पूरे निजाम के ऊपर कोई फर्क देता हूँ मंत्री को, और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसालें के बाद अभी लोग सामने आए हैं। एमपीएल के लोगों से कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीन चाहता है, आजो इधर ही आओ, आजो इधर 50,000 के लिए मेरा है ना माँ बाप को बताया। मेरा बेटा इलेक्शन लड़ना था, लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उनके रस्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे। फिर एक माँ मैदान में आई, हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पर इलेक्शन लड़ा। मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे, जो निसार अली खान, गुलाम सरवर खान और एक और आजाद उम्मीदवार थे। मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था, और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे। 1:30 बजे नताज आना बंद हो गए। मैं आरोग्य ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं, सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरोग्य ऑफिस में हुआ, और उन्होंने इस तरह धांधली की, और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं, जो चोरी के वोटों पर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से 5190 से तारीख मैं कैंडिडेट था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोकर नून लीग का था, उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर हाशिम खान वो 9,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है, और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, आरों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, एहतजाज हुआ। अंदर खलाई मखलूक और टीसीओ साहिबा और डीपीओ तीनों हमारे पास आए। एक ही बात पे रट थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें, तो हम आपको नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना खान के साथ है, हम पीटीए के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से, ये सारे 45 मेरे पास है, और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा एमएनए रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, और वो एक पीटीए के तरह से स्पाइस से हारे हैं, और फिर उसके बावजूद सच्चाई से अपनी कामयाबी का वो कर रहे हैं। मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी, मेरी अपील हुई है
कोई हिसाब से नहीं छोड़नी। खुदारा हमारी चीफ जस्टिस थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उसमें चले जाएं, वहाँ सीट जो है वो वेकेंट है, वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इससे प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। काइंडली लेफ्ट साइड। थैंक यू। माइक दे दे इधर। और मैं उनके बिहाफ में उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को, उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आपके साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करने आई हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे दो यार, अच्छा इधर लो यार, माइक दो पहले, इधर माइक दे दो यार। जितने अपने बात करिए काइंडली नीचे चले जाएं। इधर ही बैठ जाए ऐसे करके, थोड़ी सी जगह ले लो ना, आगे बैठा लो, एडजस्ट कर लो जी। तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे स्टेज से नीचे जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार मुदा खान शाहवानी, हल्का PB 43 कोयटा बलूचिस्तान से। कोयटा PB 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कॉन्फ्रेंस और पश्तून कॉन्फ्रेंसों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर में नहीं, तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को किरास करके, हमें किरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम 45 फॉर्म और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म, तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें, हम खान के मैंडेट को वापस लें। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद कलोर तेरा चौथी से मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य मूलना था 64,000 से 64,000। मैंने 50,000 की लीड से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने औरों ने मिलकर मुझे 1,203 वोट से हराया है। वो नूरी वाला था, तो कादर को मैं चैलेंज करता हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे, ये 45 फॉर्म है हमें, हमारे पास तो सबके साथ है। अगर आपको कोई है तो आप मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम में जाना है, आपने अवाम के अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। क्या मैं हर दुका में कहता हूँ कि मैं 50,000 की लीड से जीत गया हूँ, आप छोड़ दें। NA-94 से हमारे मध्य मुकाबिल नून लीग के अपोनेंट जो कैंडिडेट थे कैप्टन शेख साहब, वो पूरी तरह शिकस्त से पाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं PB 96 में, उनको मैनेज करके और आरोपी बदयासी के साथ इस इलेक्शन को गांधी सजा किया गया है। हमारी NA-94 पर वादिया बदली है, हमारे पास हमारे फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और इस फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं, हम अदालत में भी गए हैं, इंशाअल्लाह हमें साफ देना है और हम ये तवक्को करते हैं दोबारा गिनती होगी, रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो वादिया बदली है इंशाअल्लाह वो आप सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ। हमारी 7700 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, हमें रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया
उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट देने गए हमें आरोप नहीं मिलने दिया, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला। जो भी फॉर्म प्रदर्शन देते हैं वो जल्दी फॉर्म बना के अपनी कैंडिडेट से निकाले हैं। मेरा नाम तारिक नवाज है, मैं आने वाले 6/18 से हूँ और हम लोगों को शाम तक हमने रात को जो है 11 बजे आना ऑफिस के निकाल दिया गया। सारी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी, रात तक हम लोग लीड के साथ जी रहे थे। ऐसा फॉर्म 45 हमारी 7,000 की लीड है, लेकिन बेवकूफ इंसान बात भी हो जानी चाहिए, बात हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद डोगर है। मैं NA 132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ थे और मैंने 6,328 वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने हल्के से हराया है। लेकिन मेरा नतीजा 48 घंटे रोके रखा और रैली फॉर्म 45 बनाकर शहबाज शरीफ को 26,000 की लीड से जिता दिया गया। ये और इसके अलावा मेरे सैकड़ों जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा लिया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और धांधली के जरिए शहबाज शरीफ को NA 132 से जिताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरात PKWIRE 31 चौधरी रसल शाना साहब का छोटा भाई बात कर रहा हूँ। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला कैंडिडेट चौधरी रसल शाना 70,000 की ज्यादा लीड जो इमरान को लीड है। और इतनी दादरी की है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट चौधरी शाफी हुसैन जिसने सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट लिया। हमारी उनके साथ यही बात है कि आप अपने 45 फॉर्म अनाउंस करें पब्लिक में और हम भी करते हैं। जो आप फैसला करें हम उसको तस्लीम करें। मैदान में आए, कचहरी चौक में आए, जहां पे चाहे आपकी शुरू रखें और वोट डलवाएं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अकील असलम, हल्का PP 182 पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से है। मैंने ये इलेक्शन 7,000 की लीड से जीता हूँ, 7,000 की लीड से। मगर जब RO दफ्तर में 47 जारी किया गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्होंने हमें फॉर्म 47 भी नहीं दिया और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकल के दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के पब्लिक आप बात करें। मीडिया में जो मेरा रिजल्ट चला है वहाँ पे 32,000 कैमरा बंद कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सबको चांस मिलेगा अगर आप बात करेंगे। यार इधर पकड़ाओ उसको, नीचे बैठो। यार सारी तरतीब खराब कर दी आप लोग। कोई पकड़ लो यार, माइक पे दो। मैं फौजा सिद्दीकी PS 125 की उम्मीदवार खान साहब की नायब याफ्ता NA 248 और 90 से हमने इलेक्शन जीता है। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी कि किस तरीके से MCM के गुंडों ने हमारे फर्स्ट टाइम के ऊपर इनॉग्रेशन पे हमला किया था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 34,000 की लीड से हमने MCM को वहाँ पे शिकस्त दी है। कोई दूर दूर तक हमारे सामने में जो है वो लीड में नहीं आ सका माशाल्लाह। और 49,000 की लीड दी है, इसमें 34,000 की हमारी MCM से लीड है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ फॉर्म 47 में भी दिखाया गया। कहने का मकसद ये है कि RO के ऑफिस में कैमरों की ऑडियो कर दिया गया था, मुहावजा कर दिया गया था। कोई वकील नहीं जा सकता था, कोई बंदा नहीं जा सकता था। रेंजर आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय करनी थी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि फॉर्म 45 हमारे पास पूरे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें दरखास्त दे दी है। हमें पता है इलेक्शन कमीशन भी
अस्सलाम वालेकुम, कर्नल शौकत फ्रॉम NH61। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये इलेक्शन थ्रू एंड थ्रू जीते हैं। एंड मैं चैलेंज करता हूँ 3 किस्म के कि अगर जो फॉर्म है उनको काउंट कर लें या दोबारा इलेक्शन करा लें या ओथ करा लें। हर लिहाज से हम इस खून को पूरी तरह मारेंगे और हर हालत में मारेंगे। हम जीते हुए हैं और हर सूरत जीते हुए हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हो रही है बहुत स्पीकर को स्पीकर भी खैर हम दोनों साइड पे होते हैं क्योंकि हम बात करना चाहते हैं। अगर हम किसी फोरम पे पहुंचेंगे ही नहीं, आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो हम बात कर सकेंगे। प्लीज खुदा का वास्ता साइड पे हो ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हमारी बात पता चल सके। मैं रिजवान मुस्तफा सियाल इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया सारा। मैंने 37,500 वोट लिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टिकट पे कामयाब उम्मीदवार हूँ। लेकिन मुझे रात 11 बजे कॉल की जाती है, अगर तुम हमारे बूट चाटोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ रहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंशाल्लाह रहूंगा। खान के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम माइक किधर देना प्लीज। यहाँ पे फोकस कर ले, हम यहाँ से बोल के हम चले जाते हैं। किधर किधर से बोले, किधर किधर से फोकस करें। ये तो तरीका कार ही नहीं है जो यहाँ पे हो रहा है। ये हमने पहली दफा देखा है। ये सारे मैच ठीक है, ये लाइव है, इसके बाद बात नहीं है। वो जरूरी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे के साथ तहसील डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। मैंने उकाड़ा से PP 189 का इलेक्शन कंटेस्ट किया तो बेशुमार पोलिंग स्टेशनों में, बल्कि 134 पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट आया तो मैं 3,500 से जीत रहा था। मेरे पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट इन्होंने रोक लिए। रात मॉनिटरिंग जो स्क्रीन लगी हुई थी वो भी इन्होंने बंद कर दी और मुझे 2100 वोट से हरा दिया, जबकि मैं 4,500 वोटों से जीता था। मुझे ये कहा गया कि PTI की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट न करे। मैंने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर PTI के साथ इमरान खान के नजरिए पर कायम हूँ और 13 साल से PTI में हूँ। मैं इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन मैं इमरान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने RO के पास एप्लीकेशन दी, मैंने DRO के पास एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं बना। मैं हाई कोर्ट में गया, फिर मैंने अब इलेक्शन कमीशन में आया हूँ और रिकाउंटिंग के लिए मैं आइडेंटिफिकेशन वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह जल्द ये रिकाउंटिंग के ऑर्डर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन PP 189 का हम जीतेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकील असलम, हल्का PP 182 पत्तों की कसूर। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मुझे 7,000 की लीड से मैं जीत रहा था। मीडिया पे मेरा फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया। 32,326 वोट मैंने लिए और 7,000 की लीड थी। उसके बाद RO ऑफिस में जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई पूरा हल्का जानता है। मैं वहाँ पे जब 47 जारी हुआ हमें इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा RO दफ्तर से बाहर निकल के भाग गया। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन जीते हैं। 7,000 की लीड को कम करने के लिए 40 पॉइंट फॉर्म जारी बनाए गए, उनको ट्रांसफर किया गया। जिसको मैंने लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन में भी किया है। इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक अपनी हाथ लड़ेंगे और एहतजाज भी करेंगे। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है इंशाअल्लाह ताला वही अवाम का नुमाइंदा होगा और हमें ऑफर भी दी
अच्छा अच्छा वो अपने पहुंचाओ सर अच्छा सही है फैसला तो साहब है अच्छा अच्छा चलो चलो जी अभी तो बदला सी माइक से पकड़ लेना ये तो बात ही है एक घंटा जी 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 मैंने राशि आरएस घर की रजिस्टर आरएस घर की अभी दूसरी बताइए सर आप जी वैसे तो वजीरस्तान में नहीं नहीं हम लोग स्टेट में बैठे हैं ठीक है मतलब सर शुक्रिया बहुत सारी जरूर क्या ठीक है चंगा भला मैं उत्थे हैं कोशिश ही होनी है ना एमएलए साहब ये तो चल रही है क्या ना ठीक है आप ठीक है सब अच्छा जितने में फार्म दे सबसे पहले तो सारे फार्म का आया हूँ निशान है अभी यहाँ पे बात माइक की पहुँचा के जरा बात कर आपके पास मेरे ख्याल है फार्म नहीं कंप्लीट हुआ सबको सही नहीं आवड़े तीन कैंडिडेट और कुछ 10 चारों के 35 डबल है हमारे हाँ हाँ हमने मार्क करके सारा क्लियर कर दिया हमारे को 60 और 6 भी किस तरह है हमारे को उनके इधर अच्छा 3 ऐसे हैं जो एडजस्ट फैमिली थे सब बंदा पार्टी को नहीं थे माइक पकड़ो जी अच्छा गल करते हैं एक मिनट यार की तो मेरी भी नहीं हुई आशीष माइक मिल जाता है मान ली भाई मान ली आपने मनवाई है मान ली भाई मान ली आपने मनवाई है सिमाबिया सिमाबिया एक और कार्डलेस दे दीजिए एक और कार्डलेस जीत ही होगी एक कार्डलेस और दे कार्डलेस पकड़िएगा उधर से हम अब करते हैं 51 मरी सर आ जाए